So, welcome students, and today we are going to understand one of the very important topic of SQL, that is joining multiple tables together as a single table and withdraw the information from it. तो चलो शुरू करते हैं. Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं. आज के टॉपिक में हम लोग सीखने जा रहे हैं वेरियस सेट ऑपरेशन फॉर अपेंडिंग टू टेबल्स, यूनियन, इंटरसेक्ट एंड माइनस. उसके बाद हम लोग देखेंगे जॉइन ऑपरेशन, जिसमें आता है इनर जॉइन, आउटर जॉइन. इनर जॉइन के 4 तरीके हैं: नेचुरल, नॉन इक्वी जॉइन, डिराइव्ड टेबल एंड सेल्फ जॉइन. तो आज ये सारे तरीके हम लोग स्टडी कर लेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज अपेंडिंग टेबल यूजिंग सेट ऑपरेशंस. सेट ऑपरेशन का काम होता है मल्टीपल टेबल्स को एक के नीचे एक अपेंड कर देना. तो ये सेट ऑपरेशंस में मेरा पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑपरेशन, वेयर इन 2 tables are appended one below other. Intersect means it finds out the common attributes, common rows in 2 query outputs. Minus, this operation will return the rows from query 1 which is not present in query 2 output. हमेशा याद रखना, when we are applying this set queries, we have some set compatibility issues. 1, both the tables must have same number of columns, same name of columns and same data types of the columns. These 3 rules of compatibility must be satisfied by the table in order to use set operation. तो पहला set operation है union, wherein output of query 1 and query 2 are merged together and taken care of the duplicates. Duplicate will not be repeated. Duplicates will print only once. So here we are writing about union. So this is my union operation. Okay, in case of union operation, this is my query 1. Okay, so first query ka output will come and then second query ka output is calculated. First query 1 ka output will be printed, just below that query 2 ka output will be printed. Okay, so one below another the outputs will be printed. So these are employees from IT department, these are employees from CS department. So it will print first IT department ke employees, then CS department ke employees, as shown in this diagram. Next operation is intersect operation. In this, only the common tuples, मतलब observations will be printed. मतलब जो IT ये तो टेबल में भी है और CS वाले आउटपुट में भी है, दोनों में रहेंगे. ओनली दोस कॉमन टपल्स विल बी प्रिंटेड. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, सिर्फ कॉमन पार्ट विल बी प्रिंटेड. ठीक है. इसके बाद थर्ड ऑपरेशन है माइनस ऑपरेशन. यहाँ पे क्वेरी 2 will be removed from query 1. Query 1 से query 2 का output will be removed. So all IT staff will be calculated, out of which CS वाले employees will be removed. All IT will be printed, out of that all CS department employees will be removed. This operation is called as minus operation. ये तीनों ऑपरेशन करने के लिए we must check something called as set compatibility.
इसके बाद अभी हम लोग करेंगे दो टेबल्स को साइड बाय साइड ज्वाइन। इसलिए अपने पास दो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय और एक है डिपार्टमेंट टेबल, जो हम लोग ज्वाइन करेंगे। देखो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का एज, कंपनी के डिपार्टमेंट का आईडी और डिपार्टमेंट का नेम। इफ आई वांट टू ज्वाइन दिस टू टेबल्स, मतलब एम्प्लॉय के डिटेल्स और उसके डिपार्टमेंट के डिटेल्स, इफ आई वांट इन अ सिंगल टेबल, देन आई विल यूटिलाइज समथिंग कॉल्ड okay. So first point, join operation will merge columns from two different tables and forms a new table. Now when we are merging multiple tables together, we need to use some join condition. जैसे कि यहाँ पे suppose DID कॉलम है, तो एम्प्लॉय नंबर महेश, डिपार्टमेंट 10 CS, तो डिपार्टमेंट का आईडी और यहाँ का डिपार्टमेंट का आईडी मैच होना चाहिए, सो दैट महेश विल बी अटैच्ड टू द सेम डिपार्टमेंट ही बिलोंग्स टू। सो द जॉइनिंग कंडीशन विल बी, सपोज दिस इज R1 टेबल, दिस इज R2 टेबल, तो R1 का डिपार्टमेंट आईडी मस्ट मैच विथ R2 का डिपार्टमेंट आईडी। This is called as joining condition. If I want to join two tables, there has to be one join condition. If I want to join 100 tables, I need at least 99 conditions in order to join it perfectly. So in all, n-1 join conditions are required. Now in this all types of joins, first we are going to study something called as cross join. क्रॉस ज्वाइन में ज्वाइन कंडीशन नहीं होता, और इन अदर वर्ड्स क्रॉस ज्वाइन में इफ वी फॉरगेट टू राइट ज्वाइन कंडीशन, देन बाय डिफॉल्ट टेबल बिलोंग्स इज कॉल्ड एज अ क्रॉस ज्वाइन if there is a missing where condition, or if join condition is omitted, or if join condition is invalid, गलत कंडीशन लिख दिया, ओके, तो इन दैट केस इट रिजल्ट्स इन क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन में एवरी रो इन टेबल 1 is joined to every row in table 2। टेबल 1 के हर एक रो के साथ टेबल 2 की रो ज्वाइन होगी। जैसे कि महेश 100 के साथ 100 ज्वाइन होगा, फिर ज्वाइन होगा 200, बराबर है, पहले 100 ज्वाइन हो गया, फिर 200, फिर टीआईएस सुहास के साथ 100 ज्वाइन हो गया, फिर सुहास के साथ 200 ज्वाइन हो गया, ओके, फिर जयेंद्र के साथ 100 ज्वाइन हो गया, जयेंद्र के साथ 200 ज्वाइन हो गया। Irrespective of their departments, every row from employee table is connected with every row in table 2. So it is not checking any condition, and therefore it is called as cross join. Or this table has 3 rows, this table has 2 rows. If you cross multiply them, you will get 6 rows, which is row number of rows in output table. Hence, such type of join is also called as cross join. Cross join में join condition नहीं होता, या फिर join condition मिस कर किया जाता। यहाँ पे देखो, first from employee E cross join डिपार्टमेंट D। अभी ये एम्प्लॉय ई और ये डिपार्टमेंट डी, ये इन्हें बोलते हैं टेबल अलायंस। क्या बोलेंगे? टेबल अलायंस, मतलब टेबल का अनदर नेम। सो दैट यहाँ पे देखो पूरा एम्प्लॉय रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ E.EID। आपको पता है सबसे पहले कौन सा क्लॉज रन होता है? फ्रॉम क्लॉज, जहां पे मैंने नेम दे दिया। फिर सेकेंड क्लॉज रन होगा सिलेक्ट, जिससे कि ये रेफरेंस रिजॉल्व होगा।
ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे इनर जॉइंट्स। इनर जॉइंट के बहुत सारे टाइप्स हैं। इनर जॉइंट हम लोग सबसे पहले देखेंगे इक्वी जॉइंट, जहां पे इक्वालिटी कंडीशन इज यूज्ड, एंड इन दिस इक्वालिटी कंडीशन वी आर गोइंग टू फर्स्ट लुक एट द सिंपल जॉइंट। तो चलो सिंपल जॉइंट देखते हैं। व्हाट इज सिंपल जॉइंट? इन दिस पॉइंट नंबर 1, द सोर्स कंडीशन इज रिटन एंड इट हैज ओनली द मैचिंग वैल्यू, मतलब इक्वालिटी इज यूज्ड। ये इक्वी जॉइंट का टाइप है, इसलिए जॉइंट कंडीशन मस्ट हैव इक्वालिटी साइन, मतलब इक्वल टू साइन। यहां पे दो टेबल तभी ज्वाइन होंगे व्हेन देयर इज अ मैच फाउंड, मतलब अगर मैच फाउंड होगा तो ही टेबल ज्वाइन होगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले महेश 1, महेश 100 कनेक्टेड विथ 50 डेव, उसके बाद कनेक्टेड विथ 100 HR और 200 TIS। सेम रो ज्वाइन विथ 3 रोज फ्रॉम टेबल 2, 1 2 3। पर यहां पे 150 इज नॉट इक्वल, 100 and 200 is not equal, so only this is equal. So equijoin सिर्फ इतना ही कॉलम रखेगा where there is equality, मतलब 1 महेश को 100 HR के साथ ही ज्वाइन करेगा because there is a matching row, only matching rows will be connected. Now see, Suhas is attached with 200. Roll number 3, Jayendra connects with HR because 100 is HR. Suppose there is 4th tuple called as Jay, and here it is written 500. Now it will look for 500. There is no 500, and hence for Jay this tuple will be ignored by inner join. Ignored. It will not be printed in output. Why? Because उसका matching row डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, एंड दैट इज व्हाई 4th रो इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द आउटपुट। ठीक है, लिखने का तरीका देखो। सबसे पहले फ्रॉम एम्प्लॉय ई पहला टेबल, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी दूसरा टेबल, ऑन यहां पे लिखते हैं ज्वाइन कंडीशन। क्या लिखेंगे? ज्वाइन कंडीशन। क्या ज्वाइन कंडीशन है? एम्प्लॉय का कॉलम DID मस्ट मैच विथ डिपार्टमेंट का कॉलम DID। नाम सेम भी हो सकता है और नाम डिफरेंट भी हो सकता है। अगर नाम डिफरेंट है तो E.DID इज इक्वल टू D.डिपार्टमेंट नंबर, जो कुछ नया नाम है। यू कैन यूज डिफरेंट नेम्स ऑल्सो। और लास्ट में वी हैव प्रिंटेड 3 कॉलम्स, एम्प्लॉय का ID, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का नाम। सो दिस इज हाउ वी राइट इनर जॉइन। इनर जॉइन होने के बाद फॉर इंप्लीमेंटिंग इनर जॉइन इन अ सिंपल वे वी हैव अ इंप्लीमेंटेशन कॉल्ड एज नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन में हम लोगों को जॉइन कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जॉइन कंडीशन बाय डिफॉल्ट गवर्न की जाती है विद द कॉमन कॉलम। तो नेचुरल जॉइन का सबसे पहला फंडा है, इट फाइंड्स द कॉमन कॉलम बिटवीन 2 टेबल, देन इट फाइंड्स कॉमन नेम एंड डेटा टाइप। देखो जो कॉमन कॉलम है उसका नाम और डेटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए, देन ओनली इट विल यूज फॉर द ज्वाइनिंग। तो कॉमन कॉलम के बेस पे ये ज्वाइनिंग करेगा, मतलब E.EID इज इक्वल टू D.EID। कॉमन कॉलम जो है उस पर वो ज्वाइन कंडीशन लिखेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट कॉलम्स। मतलब अगर कॉलम A B C और दूसरे टेबल में कॉलम है C D, तो फाइनल टेबल में कॉलम क्या बनेगा बेटा? A B C D, दैट्स इट। C कॉलम रिपीट नहीं होगा। So column will be printed only once. For an example here, now there is very important DID is written, and here also
DPT ID will not work. We need something called as DID. Column name must be exactly same, including data type. So यहाँ पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको नेचुरल ज्वाइन, एम्प्लॉय टेबल, नेचुरल ज्वाइन, डिपार्टमेंट टेबल, दैट्स इट, और आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे देयर इज नो ज्वाइन कंडीशन बिकॉज द कॉमन कॉलम इज DID. DID is a common column which is used, hence there is no join condition is required. नेचुरल ज्वाइन में क्या करेगा, कॉमन कॉलम ढूंढेगा और कॉमन कॉलम पे बेस वो दो टेबल्स को ज्वाइन करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप कॉल्ड एज सेल्फ ज्वाइन, मतलब टेबल को उसी से ज्वाइन करना है, टेबल को उसी से ज्वाइन करना है। बहुत अच्छा ज्वाइन है। Let's see the self join. Suppose EID, ENAME and MID. Suppose employee और उसके मैनेजर का नाम प्रिंट करना है। देखो मैनेजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ सेम टेबल ना, मैनेजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय। सो 2, देखो महेश का मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय नंबर 2 जिसका नाम है गणेश। गणेश का मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय नंबर 3 जो कि है संजय। संजय का मैनेजर संजय खुद है, मतलब ही इज ओनर। मतलब मैंने क्या किया, सेम टेबल का कॉपी 1 और एक कॉपी बना लिया कॉपी 2, एक को नाम दिया E, एक को नाम दिया M। अभी देखो E वाला मतलब E का मैनेजर आईडी, E का मैनेजर आईडी मस्ट बी इक्वल टू मैनेजर टेबल का एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर टेबल का एम्प्लॉय आईडी। देखो ये कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलो ये टेबल हम लोग कोडिंग में कैसे लिखते हैं देखते हैं। हमने यहां पे लिखा है सिंपल इनर ज्वाइन, ओके, और उसमें ऑन कंडीशन लिखा है E.MID, M.EID, जो मैंने आपको प्रीवियसली लिख के दिया था, करेक्ट है। तो ये कंडीशन याद रखना जरूरी है, सिर्फ ये कंडीशन ही आपको मेन हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो अगला ज्वाइन का टाइप है डिराइव्ड रिलेशन, जहां पे हम लोग क्वेरी में इटसेल्फ वी आर क्रिएटिंग वन मोर टेबल, नया टेबल बना रहे इसके, इसका नाम है डिराइव्ड रिलेशन। सो अगला टाइप ऑफ ज्वाइन इज डिराइव्ड रिलेशंस। डिराइव्ड मतलब कंप्यूटेड टेबल। देखो हमने क्या किया, देयर इज वन टेबल कॉल्ड एज एम्प्लॉय, देयर इज अनदर टेबल रिटर्न फ्रॉम द क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where name is equal to गणेश। देखो ये ऐसा टेबल है जिसमें सारे गणेश नाम वाले एम्प्लॉय है, और ये अपना कॉमन एम्प्लॉय का टेबल। मतलब विद इन अ क्वेरी वी आर क्रिएटिंग वन मोर टेबल कॉल्ड एज वर्चुअल टेबल और अ डिराइव्ड रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल, डिराइव्ड मतलब कंप्यूट किया हुआ। नाउ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट all the employees who works in same city as Ganesh, all employee works in same city as Ganesh। अभी सबसे पहला टास्क होगा मेरा टू फाइंड आउट टेबल ऑफ एम्प्लॉय गणेश। सेकेंड, फिर गणेश टेबल मतलब G का सिटी शुड बी इक्वल टू एम्प्लॉय का सिटी। ये कंडीशन लिख के मैं ज्वाइन करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। देखो यहां पे मैंने पहला टास्क किया फ्रॉम क्लॉज, एम्प्लॉय का पूरा टेबल ले लिया। दूसरा देखो सिलेक्ट सिटी इनर ज्वाइन, ब्रैकेट में मैंने देखो नया टेबल डिराइव किया है एवरीवन। सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इनेम इक्वल टू गणेश, मतलब जिसका नाम गणेश है ऐसे सारे एम्प्लॉयज का एक टेबल बना लिया, उसको नाम दिया मैंने M।
अभी देखो ई में सारे एम्प्लॉइज हैं और एम में ऐसे एम्प्लॉइज है जिनका नाम गणेश है। अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि एम्प्लॉय का सिटी मस्ट बी इक्वल टू गणेश का सिटी। एम्प्लॉय का सिटी मस्ट बी इक्वल टू गणेश का सिटी। अगर रहेगा तो फिर उनका नेम और सिटी प्रिंट करो, और अगर रहेगा तो उनका नेम और सिटी प्रिंट करो, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया। दिस इज अज्यूम टू बी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी इन जॉइंस, जिसमें हम लोग एक अलग से टेबल बनाएंगे और नए वाले वर्चुअल टेबल के साथ, जो कि आपके मेमोरी में नहीं है, इसलिए वर्चुअल टेबल के साथ एग्जिस्टिंग टेबल को अटैच करके वी गेट द रिजल्ट, एंड दिस form of implementation is also called as derived relation. Now we will see the non-equijoin in which there is equality condition is not used. मतलब यहाँ पे हम लोग between, like ऐसे conditions use करके join condition लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे equality condition नहीं डालेंगे। जैसे कि अभी सपोज महेश हैविंग सैलरी ऑफ 45,000 एंड आई वांट टू गिव हिम ग्रेड। नाउ आई विल चेक 45,000 बिटवीन 40 एंड 49,000, ये रेंज में आता है, एंड दैट इज व्हाई माय ग्रेड विल बी ई। सुहास जिसका सैलरी 41,000 है, ये भी उसी रेंज में आता है। तो यहां पे वी हैव नॉट यूज्ड इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन इज नॉट यूज्ड, वी आर गोइंग टू यूज बिटवीन और सच ऑपरेटर। तो चलो एक बार ये क्वेरी देखते हैं। एम्प्लॉय ई एंड जॉब ग्रेड्स जे, इनको ज्वाइन करो, वेयर ई का सैलरी इज बिटवीन जे का लोएस्ट सैलरी और जे का हाईएस्ट सैलरी। एक बार चेक करो, ये आपका जे टेबल है, जे का लोएस्ट सैलरी और जे का हाईएस्ट सैलरी के बीच में अगर ये सैलरी रहेगा तो उन दो रोज को ज्वाइन करना है। ठीक है, 32,000 ज्वाइन होगा इधर डी के साथ। सो ऐसे दो रोज को आपको ज्वाइन करना है इफ इट फाउंड्स बिटवीन, एंड हियर वी हैव नॉट यूज्ड इक्वल टू साइन। हियर वी हैव नॉट यूज्ड इक्वल टू साइन, देयरफॉर दिस ज्वाइन इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वालिटी ज्वाइन। ठीक है, इसके बाद अब तक हमने उन्हीं टेबल के रोज को ज्वाइन किया जिनके लिए कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जिनके लिए राइट टेबल और लेफ्ट टेबल दोनों साइड के टेबल में रो एग्जिस्ट करती है। और अगर आपको मैचिंग वाला टपल नहीं मिला तो आपने ऐसे रोज को इग्नोर कर दिया। लेकिन समटाइम सच रोज आर इंपॉर्टेंट, एंड फॉर सच इंप्लीमेंटेशन we go with outer join। तो चलो देखते हैं आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में सबसे पहले इट कीप्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज सेटिस्फाइंग द ज्वाइन कंडीशन, मतलब इनर ज्वाइन जैसा जो ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड इट आल्सो कीप्स रोज विच आर नॉट सेटिस्फाइंग। मतलब सेटिस्फाई मतलब इनर ज्वाइन का आउटपुट तो रहेगा ही, प्लस अगर एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट है 500 और डिपार्टमेंट 500 डजंट एग्जिस्ट, तो जनरली क्या करोगे, वो एम्प्लॉय को आप निकाल दोगे, पर आउटर ज्वाइन में वो एम्प्लॉय को लिखेंगे और डिपार्टमेंट टेबल में उसके लिए लिखेंगे नल। ओके, तो आउटर ज्वाइन हैज अ स्पेशलिटी दैट although there is no matching between two tables, still it will join two tuples। Let us see one example। जैसे कि जयेंद्र है 500, अभी ये 500 के लिए यहाँ पे रो है ही नहीं, सो क्या किया, 1 महेश HR जो रो था वो ज्वाइन किया, 200 TIS जो रो था वो ज्वाइन किया। लेकिन ये जिसके लिए लेफ्ट साइड के टेबल में, ओके सॉरी राइट साइड के टेबल में कोई टपल नहीं था, उसे यहाँ पे नल लिखा और लेफ्ट साइड प्रिंट कर दिया। मतलब लेफ्ट साइड में आपका डोमिनेंट टेबल है, मतलब इसको प्रिंट करना ही है,
has to print. Although there is no row in subordinate table. Subordinate table में रो नहीं भी रहेगा तो भी ये रो प्रिंट करना है. And this is called as the left outer join because left table is a dominant table. Left table is a dominant table जिसे कंपल्सरी प्रिंट करना है, सारे रो को प्रिंट करना है, इसे बोलेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन. अगर डोमिनेंट टेबल राइट में रहेगा तो उसे बोलते हैं राइट आउटर जॉइन. उससे पहले देखो लेफ्ट आउटर जॉइन का इंप्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ एक कीवर्ड ऐड किया, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम. इनर जॉइन जैसा ही सिंटैक्स है, सिर्फ इनर जॉइन की जगह पे क्या लिखा है, लेफ्ट आउटर जॉइन, और आपका जॉइन तैयार हो गया. राइट आउटर में आपका डोमिनेंट टेबल राइट में होता है और लेफ्ट में आपका होता है सबऑर्डिनेट टेबल. पहले इनर जॉइन का आउटपुट लिख दिया. अभी देखो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए देयर इज नो एम्प्लॉय वर्किंग इन इट. देयर इज नो एम्प्लॉय वर्किंग इन इट. सो हमने वहां पे नल लिख दिया. वहां पे हमने क्या लिख दिया, नल लिख दिया. आर यू श्योर? ठीक है. इसके बाद आता है उसका इंप्लीमेंटेशन जहां पे सिर्फ हम लोग राइट आउटर जॉइन लिखेंगे. नेक्स्ट फुल आउटर जॉइन. अभी यहां पे अपने पास दोनों साइड में एक एक रो एक्स्ट्रा है. ठीक है. यहाँ पे 500 करके रो एक्स्ट्रा है जिसमें एम्प्लॉय नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है जिसका, और यहाँ पे 50 नाम का डिपार्टमेंट है जिसमें देयर इज नो एम्प्लॉय वर्किंग इन इट, और 500 में देयर इज नो डिपार्टमेंट. तो देखो 500 के लिए नल लिखा है और 50 के लिए नल लिखा है. सो राइट और लेफ्ट दोनों आ गया, उसमें लेफ्ट भी आ गया, राइट भी आ गया. इसे बोलते हैं फुल आउटर जॉइन जिसमें लेफ्ट जॉइन का इनपुट भी होता है और राइट जॉइन का इनपुट भी होता है. ऐसे टेबल को बोलते हैं फुल आउटर जॉइन जिसमें दोनों साइड के रोज कंपल्सरी सारे रोज आ जाएंगे. ठीक है. इसे इंप्लीमेंटेशन करना भी काफी सिंपल है. सिर्फ फुल आउटर जॉइन लिखो इनर जॉइन की जगह पे और आपका आउटपुट तैयार होगा. Now we will solve one example based on the join जो कि आपको यूनिवर्सिटी में हमेशा आएगा या फिर प्रैक्टिस में आपको सीक्वल जॉइन कैसे यूज करना है. तो दिस इज द क्वेश्चन. देयर आर टू टेबल्स, एम्प्लॉय एंड देयर इज डिपार्टमेंट टेबल. ठीक है. यहाँ पे डीपीटी नंबर है. तो चलो देखते हैं पहला क्वेरी. सबसे पहले हमने क्या किया, एम्प्लॉय और उसका डिपार्टमेंट प्रिंट करना. तो स्टेप 1 फ्रॉम में एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन किया डिपार्टमेंट टेबल से. एम्प्लॉय टेबल को रीनेम किया एज ई, डिपार्टमेंट टेबल को नेम किया एज डी. तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इक्वल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर. स्टेप नंबर 2 इनके डिपार्टमेंट नंबर सेम है तो उनको एक्चुअल में ज्वाइन किया. एंड स्टेप नंबर 3 हमने प्रिंटिंग किया. क्या प्रिंट किया, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट का नाम. नाउ डिस्प्ले एम्प्लॉय एंड हिज डिपार्टमेंट सिटी, डिपार्टमेंट की सिटी. सो देखो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को फर्स्ट ज्वाइन किया, ज्वाइन कंडीशन लिखा जिससे कि परफेक्ट रो से ज्वाइन हो. और थर्ड में ई नेम. अभी देखो ई नेम ये कॉलम एक ही बार आया दोनों टेबल में से, तो ई नेम लिखा हो सिटी. आपको यहाँ पे सिटी लिखने से बेटर आपको लिखना होगा d.city. तो ये डिपार्टमेंट टेबल की सिटी लाएगा, एम्प्लॉय टेबल की सिटी नहीं लाएगा. ठीक है. उसके बाद फाइंड ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर डिपार्टमेंट इन पुणे. सो हमने क्या किया, पहले तो ज्वाइन कंडीशन अप्लाई किया, उसके बाद रो फिल्टर किया, सिर्फ ऐसे रो रखे जिनका सिटी है पुणे. एंड देन मैंने एम्प्लॉय का नाम प्रिंट किया और एम्प्लॉय का सिटी प्रिंट किया. एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का सिटी प्रिंट हो गया.
इसके आगे फाइंड द मैक्स सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 50 और 60। सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया। दूसरा, मैंने ऐसे एम्प्लॉयज निकाले दोज हु आर वर्किंग फॉर 50 और 60, मतलब पूरा लिस्ट निकाल लिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, 50 में और 60 में काम करने वाले लोगों का ग्रुप। ये ग्रुप का क्या निकाला मैंने? मैक्सिमम सैलरी। करेक्ट है। लास्ट देखो, हमने यहां पे एज बिलो 30 और डिपार्टमेंट एचआर वाले लोग चाहिए। पहले तो हमने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद एज इज लेस देन 30 एंड, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। डिपार्टमेंट का नेम शुड बी एचआर, इससे बोलते हैं फिल्टर, रो फिल्टर। और फाइनली मैंने उनका एवरेज सैलरी निकाल लिया। एवरेज सैलरी निकालना है तो एवीजी ऑफ सैलरी लिखेंगे और अपने को एवरेज सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, और हमने इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर। आज के दिन में हमने सिखाया एसक्यूएल जॉइंस और जॉइंस के बहुत सारे टाइप्स। फर्स्ट इनर जॉइन। इनर जॉइन में आता है इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, सेल्फ जॉइन और डिराइव्ड रिलेशन, जिसमें हम लोग नया टेबल बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में भी हमने 3 टाइप्स ऑफ जॉइन देखे। ठीक है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर। लेफ्ट साइड में लेफ्ट का टेबल कंपलसरी प्रिंट करना है। राइट में अगर कुछ नहीं रहेगा तो नल प्रिंट करो। राइट साइड के राइट आउटर में राइट साइड का टेबल कंपलसरी प्रिंट करना है। लेफ्ट में अगर मैचिंग नहीं रहेगा तो नल प्रिंट करो। फुल आउटर में दोनों टाइप के टेबल्स को प्रिंट करना है। तो ऑल इन ऑल हमने काफी सारे टाइप्स ऑफ जॉइन ऑपरेशन देख लिए, स्टडी कर लिया। तो मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के साथ, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वेरियस जॉइन ऑपरेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही लाइक करते रहें सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।